Good morning, dear students. Welcome to our English class. How are you all? Hope you remember what we learned lastly. Lastly, we learned our lesson, that is Unit 9, Desert Animals. We completed 4 paragraphs of it. And today we will be moving ahead with the 5th paragraph. We will try to complete this chapter, students, as soon as possible when we'll move to Unit 10. So let us start with the 5th paragraph. The 5th paragraph says about mongoose, right? Mongoose like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight beyond rocks or bushes by twittering and calling. What is the meaning of twittering? Making small noise. So what is said in the first lines, that mongoose always they hunt together and they keep in touch with others. They don't let anybody go away. किसी को भी अकेला छोड़ के वो झुंड में शिकार करते हैं, अकेला छोड़ के किसी को भी आते नहीं है. अगर कोई चला जाता है यहाँ वहाँ तो उसको फिर आवाज़ करके, ट्विटरिंग करके और कॉल करके उसको मतलब बुलाते हैं. कॉल करके मतलब दे मेक नॉइजेस इन ऑर्डर टू कॉल दैट पर्टिकुलर mongoose which is left behind the group. Always on the lookout for danger, hawks, eagles and large snakes, they warn one another with special alarm called if they spot anything suspicious. So what is said, that they keep on calling one another, they keep in touch with one another, okay, and they are always on danger by hawks, eagles and large snake. ये सब उनको खाने के लिए रेडी होते हैं, तो वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल काइंड का अलार्म होता है, मतलब एक स्पेशल काइंड की नॉइज़ होती है. उस नॉइज़ से सबको अलर्ट करते हैं अगर उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज सस्पिशियस, तो ऐसा वो लोग करते हैं. ओके, देन पैराग्राफ 6. Mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes, and they continually make nuisance of themselves until after a while, when the snake gets tired, they quickly drive in for the kill. So what is said over here, that ये जो मंगूस होते हैं ना, दे कैन किल द स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ. वो अपने आप को हर्ट किए बिना स्नेक को किल कर सकते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़ोर ज़ोर से स्नेक को डॉज करते. डॉज मतलब अगर स्नेक उसको काटने आ रहा है या बाइट करने आ रहा है तो वो जंप करते हैं और स्नेक को ही हर्ट करते हैं. तो इस तरीके से स्नेक को डॉज करते हैं और धीरे धीरे स्नेक टायर्ड हो जाता है. जैसे ही स्नेक टायर्ड होता है, दे रन फॉर अ किल. तुरंत ही उसको मारने के लिए, किल करने के लिए जाते हैं. And what is said, all the female mongoose have their kitten at about the same time. They are raised by the whole group in a den made inside an old termite mound or hollow log. When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to guard until the others return for the night. सो इट इज़ सो वेरी नाइस कि जितने भी फीमेल मंगूस होते हैं ना, वो एक ही टाइम पे अपने किटन्स को बर्थ देती है. तो सारे जो कितने भी बच्चे होते हैं ना, वो पूरे ग्रुप के सारे बच्चों के साथ ही बड़े होते हैं. ऐसा नहीं कि ये मंगूस का है तो वही बड़ा करेगा, ये किसी दूसरे मंगूस का है तो हम नहीं बड़ा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता था. सारे बच्चों को एक ही जगह पे माउंटेन के किसी डेन में रखते थे और कोई 1-2 गार्ड्स बन के मेल वहाँ पे गार्ड करते थे और फीमेल्स अंदर बच्चों का ध्यान रखती थी. सब मिल के रहते, पर एज अ जॉइंट फैमिली दे स्टे एज वन ग्रुप. तो इस तरीके से सारे बच्चे एक साथ बड़े हो जाते हैं. और जब जो बड़े वाले मेल्स होते हैं वो खाना वगैरह ढूंढने जाते हैं, तो ये छोटे बच्चों की रक्षा करने के लिए, उनकी गार्डन करने के लिए कुछ और मेल्स को वहाँ आसपास रख के जाते, ताकि कोई भी आके इनको खाए ना. क्योंकि जो स्नेक्स होते हैं, फिर हॉक्स होते हैं, ईगल्स होते हैं, वो बैठे ही होते हैं कि कब ये लोग हले और कब हम इनके ग्रुप पे अटैक करें और इनको खा जाए. ठीक है. देन नेक्स्ट पैराग्राफ इज, another animal which lives in the desert is camel. Camels were first domesticated by people for many thousands of years ago. In this, wild camels usually live in small groups up to 30 animals. Camels have long, shaggy, watery coats to keep warm and shorter, tighter coats in summer to keep cool. A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. That's almost about 500 full glasses.
in just 10 minutes. Normally, however, it gets all the moisture it needs from the desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. तो क्या लिखा है स्टूडेंट्स? कैमल के बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी है कि कैमल भी एक एनिमल है जो डेजर्ट में रहता है, और कैमल डोमेस्टिकेट किया गया था पीपल्स के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो से ही कैमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, उसको डोमेस्टिक एनिमल की तरह रखते हैं फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ यूजेस. अलग अलग यूजेस हो सकते हैं उनके. वाइल्ड कैमल्स होते हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं, 30 एनिमल्स का ग्रुप बना के रहते हैं. Animals have long shaggy watery coats to keep warm and shorter tighter coats in summer to keep cool. तो उनका जो कोट होता है, उनकी जो स्किन होती है वो अपने आप अपने टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती है. समर में अलग तरीके से हो जाती है, टाइट हो जाती है ताकि उसको ठंडक महसूस हो, और विंटर्स में लॉन्ग होती है, शैगी होती है इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्फ वार्म इन विंटर. ठीक है, तो विंटर और समर में वो अपने आप को अडॉप्ट करता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर. A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. कितना gallons? 30 gallons is equal to 500 full glasses of water. 500 glasses of water वो खाली 10 minutes में पी सकता है अगर वो प्यासा है तो, और फिर वो अपनी बॉडी में इसको स्टोर रखता है. लेकिन नॉर्मली उसका मॉइस्चर उसको मिलता है, जो डेजर्ट प्लांट्स वो खाता है या जब पानी पी लेता है तो उसकी बॉडी में मॉइस्चर मेंटेन रहता है. और जो कैमल होते हैं ना, वो कैमल दे कैन सर्वाइव इन द डेजर्ट फॉर 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल. तो पानी पिए बिना वो लोग 10 months तक रह सकते हैं. खाएंगे जो भी अवेलेबल होगा उनको वो सब वो लोग खा सकते हैं, लेकिन पानी वगैरह पिए बिना दे कैन स्टे फॉर 10 months. 10 महीने तक वो आराम से रह सकते हैं विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. सोचो अपन सुबह से लेकर दोपहर तक पानी नहीं पीते तो अपनी हालत कैसे हो जाती है. बट दीज कैमल्स आर सो अडॉप्टेड. नेचर ने उनको ऐसा ब्लेसिंग दिया है कि भाई तुम डेजर्ट में रहते हो, 10 महीने पानी नहीं पियोगे तो यू कैन स्टे वेल. एंड द 9th paragraph ऑफ दिस chapter, students, this is the last one. There are 2 different kinds of camel. One known as dromedary has only one single hump. The other has 2 humps and is called as Bactrian camel and has 2 humps. The humps help the animal to survive in desert बाई एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स. तो जो हम्प होते हैं हमें लगता है कि ये कैसा है बॉडी पे, लेकिन वो हम्प उसका स्टोरेज कंटेनर होता है. एक्स्ट्रेस खा लिया, फैट वगैरह सब बॉडी के हम्प में स्टोर हो जाता है. सो इट हेल्प्स टू गेट एनर्जी बाय बर्निंग द फैट प्रेजेंट इन द हम्प. ठीक है, बट दे डोंट स्टोर वाटर. अपने को ऐसा लगता है कि हम्प में पानी स्टोर करता होगा, लेकिन एक्चुअली कैमल स्टोर्स फैट इन इट्स हम्प. खाए पी के जो फैट बनता है ना, वो फैट सारा हम्प में स्टोर हो जाता है. फैट नरिशेस द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कार्स. मतलब जब खाना बहुत कम होता है, तो खाना नहीं मिल रहा होता है, तो अपने हम्प का फैट बर्न करके वो अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. If they have nothing to eat for several days, their hump shrinks as fat is used up. There are many other ways in which camels are adapted to the desert life. Their mouths are so tough that even the sharp thorns cannot pierce through. तो ये जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, इसमें जो कैमल है, कैमल जो है उसने अपने को इतने अच्छी तरीके से अडॉप्ट किया हुआ है, इतने सारे अडाप्टेशंस है. उसके जो माउथ होता है, इट इज़ ऑल्सो सो वेरी टफ. इतना हार्ड होता है कि इवन द हार्ड शार्प थ्रोन्स कैनॉट पियर्स थ्रू. मतलब वो चुभते नहीं है उसको, वो उनको भी खा सकते हैं. कैक्टस वगैरह होता है ना, तो ही कैन ईट दैट वेरी इजीली. तो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द चैप्टर ऑल अबाउट. ये सारा चैप्टर है, ठीक है. और ये चैप्टर में हमने जितने भी अलग अलग टाइप के एनिमल्स पढ़े, उनके एडेप्टेशंस पढ़े, वो सब आपको याद रखने हैं. इंसेक्ट्स देखे, रॉडेंट्स देखे, स्नेक देखा, रैटल स्नेक देखा, टाइप्स ऑफ स्नेक देखे. उसके बाद में हमने क्या देखा, मंगूस देखा कि वो लोग किस तरीके से ग्रुप में रहते हैं, साथ में रह के काम करते हैं. अपने सारे छोटे बच्चों को भी वो लोग साथ में रखते हैं. दे ग्रो टुगेदर एंड दे आर टेकन केयर ऑफ एनिमल्स टुगेदर. सारे एनिमल्स मिलके उनका ध्यान रखते. तो ये सारी चीज़ें हमने देखी. फिर हमने देखा कि जो डेजर्ट एनिमल्स है उसमें कैमल भी आता है. कैमल को तो सदियों से डोमेस्टिकेट करके रखते थे, और वो लोग जो वाइल्ड कैमल्स होते हैं वो लोग 30 के स्मॉल ग्रुप्स में रहते हैं. अपने आप को विंटर और समर के हिसाब से
अडप्ट करते हैं, उनके कोट्स टाइटर और शैगी हो जाते हैं विंटर में और समर में अकॉर्डिंगली। और जो थर्स्टी कैमल होता है वो ऑलमोस्ट 30 गैलन्स ऑफ वाटर पी सकता है, जिसका मतलब है 500 फुल ग्लासेस ऑफ वाटर जस्ट इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में इतना सारा पानी वो पी जाता है। ओके, और अगर फिर उसको पानी नहीं मिलता है तो वो 10 मंथ्स तक बिना पानी के डेजर्ट में रह सकता है। फिर 1 हम्प वाला भी कैमल होता है और 2 हम्प वाला भी कैमल होता है। 1 हम्प वाला कैमल को क्या कहते हैं? डॉर्मेंड्रे। और जो हम्प वाला होता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियन कैमल। ओके, हमने क्या पढ़ा कि उनकी जो हम्प होती है उसके अंदर पानी स्टोर होता है? नहीं, क्या स्टोर होता है? फैट। तो फैट स्टोर करके वो लोग को जब खाना नहीं मिलता है तो वो फैट को बर्न करते हैं और अपनी बॉडी को नरिश करते हैं। तो जो भी हम्प छोटा हो ना किसी कैमल का, तो समझ जाने का कि ये बेचारा बहुत टाइम से भूखा है, इसको खाना मिला नहीं है, इसीलिए उसका हम्प छोटा हो गया है। ठीक है, और उनका माउथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे वो शार्प जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट के उनको भी खा सकते हैं। उनको वो नहीं लगता है मुंह में, जो कांटे होते हैं वो लगते नहीं है। ओके, so in this way camels are also adapted to live a life in desert. Okay students, that's all for today. See you all again. We'll move ahead with the writing part. See you soon.